ناظرین، تاریخی شہر اورنگ آباد کا تاریخی عام خاص میدان جو کبھی قوم اور ملت کے ساتھ ساتھ تمامی سماج اور مذاہب کے ہونہار کھلاڑیوں کے لیے اقلیتوں کا اکلوتا کھیل کا میدان تھا، وہ اب آہستہ آہستہ قوم اور ملت کے نام پر، اردو کے فروغ کے نام پر، تو کبھی تعلیمی بیداری کے نام پر، کبھی ایجوکیشن ایکسپو کے نام پر اور کبھی مشاعروں کے نام پر ملت سے اور قوم سے، جنتا سے پیسے بٹورنے کا میدان بن چکا ہے۔ تاریخی عام خاص میدان جو کہ وقف بورڈ کی ملکیت ہے، یہاں پر جتنے بھی پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس کا معمولی کرایہ وقف بورڈ کو ادا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس پورے میدان میں سینکڑوں چھوٹی دکانیں بنا کر 4-5 دنوں کے لیے ہونے والے ان فیسٹیول، ایجوکیشن ایکسپو اور دیگر پروگراموں کے دوران موٹی رقم لے کر کرائے پر دی جاتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان دکانوں سے جمع کی گئی لاکھوں روپے کی موٹی اور حرام کی کمائی جیبوں میں ٹھوس کر یہ لوگ اردو اور قوم اور ملت کی فلاح اور بہبود کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کبھی اردو کے فروغ کے نام پر، تو کبھی ایجوکیشن ایکسپو کے نام پر، تعلیم کے بیداری کے نام پر اس میدان میں میلہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے پروگراموں سے نہ ہی ملت کا، نہ ہی ملت کے نونہالوں کا تعلیم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی کو تعلیم کے نام پر پھوٹی کوڑی کی امداد دی جاتی ہے، بلکہ یہ اور اس طرح کے پروگرام صرف قوم اور ملت کے لاکھوں روپیوں کو لوٹنے کا ایک ایسا مہذب ذریعہ بن چکا ہے کہ جس کو ملت کے نونہالوں میں تعلیم سے جستجو کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے اور ان جیسے پروگراموں سے کتنا فائدہ آج تک قوم اور ملت کو ہوا، طلبہ کو اور اساتذہ کو ہوا، تعلیمی اداروں کو ہوا، یہ سوال انہی لوگوں سے پوچھا جائے، لیکن بار بار اردو کے فروغ کے نام پر اور تعلیم کے نام پر بھی جس طرح سے قوم اور سماج کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ اب عوام کے سامنے پوری طرح سے واضح اور صاف ہو چکا ہے۔ ناظرین، اردو کی بات کرنے والے اور اردو کے نام پر اردو کی روٹی کھانے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اس وقت ہمارے اس تاریخی شہر میں جتنے بھی اردو اخبارات شائع ہو رہے ہیں یا پھر پابندی سے آن لائن ہی صحیح، یہ لوگ پوری ایمانداری، پوری طاقت اور پوری بے باکی سے نہ صرف قوم اور ملت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو اردو کی حفاظت اور اردو کو فروغ کرنے کے لیے اپنی خدمات کو بے لوث طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ رہی بات اردو کے فروغ کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں سے کوئی یہ پوچھے اور یہ سوال کرے، جو لوگ اردو کے فروغ کی بات کرتے ہیں، اردو کے فروغ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں، ان لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں کہ جو 5 روپے کا اردو اخبار بھی خرید کر پڑھنے کی شاید ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، اور ان میں زیادہ تر لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یا تو ہوٹلوں میں بیٹھ کر ان اردو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، یا پھر صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ گروپ میں یہ اردو اخبارات کو تلاش کرتے ہیں اور دن بھر اردو کے فروغ کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ خیر، عام خاص میدان میں اب اس طرح کے پروگرام حقیقت میں قوم اور ملت کی فلاح و بہبود اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے نام پر آئے دن منعقد ہونے لگے ہیں، کیونکہ اس سے قوم اور ملت کا، طلبہ اور طالبات کا اور اساتذہ کا اور اردو زبان کا تو کم، لیکن اس طرح کا میلے لگانے والوں کا مفاد پورا ضرور ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی قوم کے، تعلیم کے اور اردو کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، انہیں آپ کبھی اہم اور سنجیدہ مسائل کے وقت میدان میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ اپنی کمائی کرنے کے بعد، اپنی رقومات حاصل کرنے کے بعد عیش اور آرام کی زندگی گزار کر ادھر سے ادھر گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں، اور جب وقت آ جاتا ہے تو پھر انہیں قوم اور ملت، تعلیم، طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ اردو کی فکر ستانے لگتی ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک ایسا ننگا ناچ۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ پہلے سے پسماندہ یہ قوم مزید پسماندگی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ ناظرین، شہر میں جتنے بھی باغڑ بلے جو سال بھر اپنی اور اپنی قوم اور ملت کے کسی مسئلے پر دکھائی نہیں دیتے، وہ انہیں قوم اور ملت کے تعلیمی مسائل سے کوئی لینا دینا اور کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سال میں ایک مرتبہ انہیں اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے میلے لگانے کا موقع ملتا ہے تو پھر یہ پڑھے لکھے ان پڑھ تعلیم کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر خود کو ماہر تعلیم اور ملت کے ہمدرد کے روپ میں پیش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور انہیں اس کا موقع ملتا ہے اور یہ نکل پڑتے ہیں بڑے بڑے تعلیمی اداروں
के तालीमी माफियाओं के दरबारों में। आप सभी को चूंकि पता है और पता होना भी चाहिए कि इस्लाम में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई वो तालीम को लेकर हुई, यानी इक़रा यानी तालीम को हासिल करो, चाहे जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, एक मर्तबा का खाना अगर छोड़ना पड़े, एक मर्तबा खाली पेट रहना पड़े, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम ने और शरीयत ने जिस तरह से मुसलमानों को और कौम और मिल्लत को एक दर्स दिया है, उसका बहाना बनाकर उसका ढिंडोरा पीट पीट कर ये तालीमी इदारों के बड़े बड़े तालीमी एजुकेशन माफिया अपने तालीमी इदारों के इश्तिहारात इन जैसे प्रोग्रामों में देकर, इनके बैनरों के ज़रिए, इनके होर्डिंग्स के ज़रिए और बड़े बड़े स्लोगनों के ज़रिए भोली भाली आवाम को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें अपनी जानिब राग़िब करने का एक ऐसा खेल शुरू करते हैं जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारे शहर तारीख़ी औरंगाबाद में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के प्रोग्रामों में 4, 5 और 8 दिनों तक यहाँ पर लोगों को, नौजवानों को, तलबा को और आवाम को घूमने फिरने का और सैर और तफरी का मौका मिल जाता है। और ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करने का जो मकसद आवाम को दिखाया जाता है वो सरासर एक तरह का धोखा है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्रामों से और इस तरह के मेलों से ना ही असातिज़ा का, ना ही तलबा का और स्कूल और कॉलेज का और कौम और मिल्लत के नौनिहालों का कोई फ़ायदा होता है और ना इनका कोई तालीमी मफाद पूरा होता है, बल्कि जो कुछ भी हासिल करना है इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने वाले और उर्दू के और स्कूलों के मुखियाओं की जानिब से असातिज़ा और तलबा को भी मुकाबलों के नाम पर इस मेले में और इस प्रोग्रामों में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाता है। और इनकी जेब से भी जो मेहनत की हलाल की कमाई होती है वो इन प्रोग्राम मुनाकिद करने वालों को दे दी जाती है, उनके हवाले कर दी जाती है। इन प्रोग्रामों के नाम पर तलबा को इनामात से नवाजा जाता है और इसकी खूब नुमाइश करके सबको इस तरह का पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि इन प्रोग्रामों में तलबा की तालीमी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और तलबा को इनामात से नवाजा भी गया। लेकिन ये चंद लोगों को इस तरह के इनामात देकर पूरे प्रोग्राम को किस तरह से हाईजेक करने की कोशिश होती है, इसका अंदाज़ा शायद भूली भाली आवाम को नहीं है। लेकिन इस जानिब आवाम को, तमामी जिम्मेदारान को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि तालीम के नाम पर, एजुकेशन एक्सपो के नाम पर और उर्दू के फ़रोग़ के नाम पर गुज़िश्ता कई सालों से तारीख़ी शहर औरंगाबाद के इस तारीख़ी आम खास मैदान को इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी जनता को, पूरे आवाम को इसकी भेंट चढ़ाकर लाखों रुपए वसूल करके ये लोग अपने आप को कौम और मिल्लत का ठेकेदार साबित करने में मसरूफ़ है। लेकिन आपको फिर एक मरतबा हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर शिरकत करने वाले अपने दिलों पर हाथ रखकर इस बात का फैसला कीजिए और अब बस कर दीजिए, क्योंकि चाहे वो सियासतदां हो, फिर चाहे तालीम के नाम पर तालीम का कारोबार करने वाला, माहिर तालीम का ढिंडोरा पीटने वाला किसी बड़े तालीमी इदारे का जिम्मेदार हो, चाहे उर्दू के फ़रोग़ के नाम पर उर्दू की रोटी खाने वाले हो, चाहे शायरों को बुलाकर मुशायरे के ज़रिए हंसी मजाक का बाजार गर्म करने वाले हो, सभी इस सफ में खड़े हुए। क्योंकि जब भी यहाँ पर मुशायरे मुनाकिद हो रहे हैं, इनमें मकामी शायरों को छोड़कर बाहर से बड़े बड़े शायरों को बुलाकर उनकी दाद रसी की जाती है और उनके ऐशो आराम के पूरे यहाँ पर इंतजामात किए जाते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग बड़े बड़े शायरों को बुलाकर वो तारीख़ी शहर औरंगाबाद के वो शायर जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से उर्दू की तरक्की, उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू की हिफाजत के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश और खिदमत अंजाम दे रहे, उन्हें कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं होता। इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि ऐसे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनकी आओ भगत करके फिर ये लोग इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए और नौजवानों में और तलबा में और असातिज़ा में और स्कूल के ज़िम्मेदारान में एक तरह की बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, बल्कि अमली तौर पर अगर देखा जाए तो इससे कौम और मिल्लत का, समाज का और तलबा का किसी भी तरह का कोई फ़ायदा अब तक तो दिखाई नहीं दिया। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को जहन में रखिए कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद के इस तारीख़ी आमकाद मैदान में जो मेले लगाए जाते हैं, उसे मुनाकिद करने के बाद जो भी पैसा मिलता है, अगर उसे वाकई पूरी ईमानदारी से अवाम और मुल्क के साथ साथ तलबा और तालिबात तालीमी इदारों और कॉलेजों पर खर्च की जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर हर साल ही नहीं बल्कि हर महीने इस तरह के प्रोग्राम और मेले आम खास मैदान में लगाए जाए। और अगर सिर्फ अपना मफाद पूरा करना हो, अवाम को बेवकूफ़ बनाना अगर मकसद हो, तो बराह करम इस तरह मिल्लत को धोखा देना बंद करो और मिल्लत के फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र करो। मिल्लत के हलाल की कमाई को
मेहनत की कमाई को इस तरह आवाम की पैसों को लूट कर आवाम को सैर और तफरी के मौके फराहम करने के बजाय इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि तलबा को और तालिबात को मिल्लत के उन नौनिहालों को जो कसम पुरसी की हालत में और माशी हालत से परेशान होने के बावजूद आला तालीम हासिल करने का ख्वाब अपने अंदर रखते हैं, इनके सरपरस्तों की इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो इनकी तालीम का, इनकी आला तालीम का इतना खर्च उठा सके। लिहाजा तालीमी इदारों के जिम्मेदारान को इस एजुकेशन एक्सपो में बुलाकर उनके सामने इस बात को रखा जाए, उन्हें झिंझोड़ा जाए, उनके दिल पर हाथ रखकर उनसे सवाल किया जाए कि आपने अब तक कौम और मिल्लत को मुफ्त तालीम देने के लिए और हकीकी तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए कितनी कोशिश की, और अगर नहीं की तो फिर इन तालीमी इदारों से और इन तालीमी मकामों से अपने मफाद पूरा करना अब बंद होना चाहिए। आवाम को प्रोग्राम मुनाकिद करने वालों में से अगर आप उर्दू के वाकई शहदाई है, इसका उर्दू के फ़रोग़ की खिदमत को आप अंजाम देने वाले हैं, तो फिर उर्दू की हिफाजत करने वालों को उर्दू अखबारात को भी जहन में रखिए। वो उर्दू अखबारात जो माशी तौर पर पूरी तरह से परेशान है, उसके बावजूद एक मादरी ज़बान होने की वजह से एक ऐसी ज़बान जो पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी, कही और पढ़ी और सुनी जाती है, एक मीठी ज़बान है। लेकिन इस ज़बान की हिफाजत के साथ साथ इन उर्दू अखबारात ने जिस तरह से इस उर्दू को बचाने के लिए और कौम और मिल्लत की तर्जुमानी के लिए अपनी खिदमत को पेश किया है, अपनी सारी परेशानियों के बावजूद उर्दू अखबारात का एक सिलसिला तारीखी शहर औरंगाबाद में अब भी जारी है। लेकिन कोई इस जानिब देखने वाला और इस जानिब तवज्जो देने वाला आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि सब के सब सिर्फ उर्दू के नाम पर, तालीम के नाम पर, कौम और मिल्लत के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने, भूली भाली अवाम से लाखों रुपए ऐंठने और उनके पैसे से ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारने में इस वक्त मसरूफ़ है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि तलबा की तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए। हकीकी मानों में अगर आप कौम और मिल्लत के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के एजुकेशन एक्सपो मुनाकिद करके इनसे हासिल होने वाली रकम को कौम और मिल्लत के और तमामी समाज के ज़रूरतमंदों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर और तलबा पर खर्च करे और इसका फ़ायदा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए। वरना इस तरह के मेले लगाकर आवाम की जेबों से पैसे निकालने का ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तारीख़ी आमखास मैदान एक ऐसा मैदान है जो पूरे अक़लियतों का एक इकलौता मैदान इस वक्त बचा है। इसे पैसा कमाने का अड्डा बनाया जा चुका है। कौम और मिल्लत के नाम पर और तालीम के नाम पर ऐसे कई प्रोग्राम अब लगातार यहाँ पर मुनाकिद हो रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ना ही तलबा को होता है, ना ही स्कूलों को होता है, ना ही असातिज़ा को होता है, बल्कि इससे उन मफाद परस्तों का मफाद पूरा होता है जो कौम के नाम पर सबको धोखा देने में इस वक्त मसरूफ़ है। चाहे सियासत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे तालीमी मैदान हो, इस वक्त कौम और मिल्लत का और कौम के तलबा और तालिबात का, इनके सरपरस्तों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितने भी तालीमी इदारे, बड़े बड़े तालीमी इदारे इश्तिहारात के ज़रिए, होर्डिंग्स के ज़रिए, बड़े बड़े स्लोगनों के ज़रिए इन प्रोग्रामों में और इन मेलों में इश्तिहारात लगाकर आवाम को अपनी जानिब राग़िब करते हैं और मोटी रकम लेकर एक मामूली सी केजी के बच्चे का अगर एडमिशन करना है तो डोनेशन के नाम पर 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये इनसे वसूल किया जाता है। और फिर स्टेजों पर खड़े रहकर, मिंबरों पर खड़े रहकर ये लोग कौम और मिल्लत को इस बात की दुहाई देते हैं कि तालीम को आम कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। हालांकि इन्हीं लोगों ने और इन्हीं एजुकेशन माफियाओं ने आज तालीम को कारोबार बनाकर इस तालीम को इतना महंगा कर दिया है कि लोग, वो तलबा और तालिबात जो आला तालीम हासिल करने का सपना देखते हैं, वो दरमियान में ही तालीम का सिलसिला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इस्तेताअत और इतनी रकम नहीं होती कि वो तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की उस ख्वाहिश को, उन पैसों को दे सके। उनकी इस उम्मीदों पर पानी फिरता है। लिहाजा तालीम का और उर्दू का अगर सही वाकई आपको उर्दू की खिदमत करना है, उर्दू को फ़रोग़ देना है और तालीम के मैदान में भी अगर अपनी खिदमत को पेश करना है, तो याद रखिए किसी भी कौम और किसी भी समाज की तरक्की का एक ही रास्ता है और वो वाहिद रास्ता तालीम का रास्ता है। इसी के ज़रिए, यानी तालीम के ज़रिए ही हम तमाम कौमों का मुकाबला कर सकते हैं, अपने समाज की और इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अगर तालीम से अगर नौजवान और हमारा ये समाज और हमारा मुआशरा अगर दूर रहेगा तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस एजुकेशन माफियाओं पर और इस तालीमी इदारों के उन तालीमी कारोबारियों पर है जो
تعلیم کے نام پر اس وقت بزنس کرنے میں مصروف ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ بات کہنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تعلیم کو مہنگا کر کے، تعلیم کا کاروبار کر کے ان لوگوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے لے کر نہ ہی قوم اور ملت اور نہ ہی انسانیت انہیں کبھی معاف کر سکتی ہے۔ لہٰذا تاریخی شہر اورنگ آباد کے اس تاریخی عام خاص میدان میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی پروگرام منعقد کرنا ہے تو منعقد کیجیے، ہر سال نہیں بلکہ سال میں 10 مرتبہ اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے چاہیے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ان پروگراموں سے جو کمائی ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اسے قوم اور ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے استعمال کیجیے، ورنہ اب اس طرح کے پروگراموں پر روک لگانا، بریک لگانا اور اس پر لگام کسنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ اگر سچ بات سننے کی اگر طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر کسی کو مشورہ دینا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، کامنٹ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیجیے کہ کیا واقعی سیاست میں، تجارت میں اور تعلیمی میدان میں قوم اور ملت کی نمائندگی کرنے والے اپنی قوم کی اور اپنی ملت کی اور اپنے تعلیمی اداروں کی حقیقی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر وہ خدمت کے نام پر، اردو کے فروغ کے نام پر اور ایجوکیشن ایکسپو کے نام پر ملک اور ملت کو اور سماج کو اور قوم کو اور نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ سے ایک اپیل یہ بھی ہے کہ تعلیم کی بیداری کے لیے، تعلیم کے لیے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اور تعلیمی خدمات کو انجام دینے کے لیے میدان میں آئیے۔ تعلیم ہی کے ذریعے کوئی بھی قوم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر یہ قوم اور ملت اگر تعلیم سے دور ہوگی تو پھر اس کا مستقبل پوری طرح سے تاریک اور اندھیرے میں ڈوب چکا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔